اچھا، لاسٹ ٹائم ہم نے یہاں تک کام کیا تھا، اور اس کی جو انٹرنل جو والز ہیں اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم کام کریں تو اس کے اندر جتنی بھی والز آئیں ان پہ اسکرٹنگ اپلائی ہو. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ اس کے اندر جو فلور ہے وہ مطلب ہے کہ جس طریقے سے ہم نے جو پلان اس پہ یہ والا جو ہم استعمال کر رہے ہیں اسی کے حساب سے ہم اس کے اندر جو فلور ہے وہ بھی ہم اس کے اندر انسٹال کریں، لائیں اس کے اندر ایڈ کریں. تو پہلے ہم اسکرٹنگ سے کر لیتے ہیں. جی ہم اسکرٹنگ ایڈ کرتے ہیں تو اسکرٹنگ کے لیے پہلے میں اپنے پہلے والے اوکے لیول میں چلا جاتا ہوں. اچھا، اس کے جو انٹرنل والس ہیں اس پہ ہم اسکرٹنگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. اسکرٹنگ کے دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ یہاں پر والس پہ چلے جائیں، وال پہ یہاں پر جب آپ کلک کر دیتے ہیں وال آرکیٹیکچر اس پہ کلک کر دیں تو یہ وہی والی وال ہے جو ہم یہاں پر جی یوز کر رہے ہیں. آپ نے ایک تو یہ طریقہ کر لینا ہے کہ جب آپ چاہیں کہ اب میں اسکرٹنگ انٹرنل پہ اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو میک شور کرنا ہے کہ یہ جو والز ہیں، اب چونکہ میں یہ والی وال جو میں نے یہ والی وال بنائی ہے، اگر میں یہی والی وال یہاں سے لیتا ہوں اور لگاتا ہوں اور اس کے اوپر اگر میں اسکرٹنگ اپلائی کروں گا تو آٹومیٹکلی جو یہ آؤٹر باؤنڈریز وال ہے ان سب پہ بھی اپلائی ہو جائے گا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ان جی سب پہ اپلائی نہ ہو اور ان سب سے جی بچنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ صرف انٹرنل آئے، تو پھر اس کے لیے آپ نے وال کو پہلے لے لینا ہے، اس کے ایڈٹ ٹائپ میں چلے جانا ہے اور دوبارہ اس کو ڈپلیکیٹ کر دینا ہے. تو اب کی بار میں اس کو صرف نام دوں گا اسکرٹنگ کے نام سے دے دوں گا، اسکرٹنگ وال، اور میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں. اب جب میں نے اس کو ڈپلیکیٹ کر دیا ہے تو اب میں کیا کروں گا، میں ایڈٹ میں چلا جاؤں گا. تو ڈپلیکیٹ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی آپ نے جو ڈیٹیلز ڈالی ہوں گی وہ اپنی جگہ پہ ویسے ہی رہیں گی. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر نیچے دیکھیں تو آپ کے پاس جی پریویو ہے. پریویو پہ جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس وال اس طریقے سے کچھ شو ہوتی ہے. ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس پہ اسکرٹنگ لگانے کے لیے یہاں دیکھیں تو یہاں سویپس لکھا ہوا ہے، مرج ریجن یہ وغیرہ یہ چیزیں ہیں، لیکن چونکہ اب یہ سارے کے سارے بند ہیں تو میں کیا کروں گا، ان کو اوپن کرنے کے لیے ان جو آپشنز ہیں ان کے لیے آپ یہاں پر ویو پہ چلے جائیں گے. نیچے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں یہاں پر دو آپشنز ہیں. تو یہاں پر دیکھیں موڈیفائی ٹائپ ایٹریبیوٹس، اگر میں اس پہ کلک کروں تو اس طریقے سے آپ کا ایک سیکشن نما آپ کو یہ شو ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد کیا کریں، جب آپ اس کو اس طرح کر لیتے ہیں تو جی یہاں دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس سویپ اوپن ہو جاتا ہے. سویپس پہ آ جائیں، یہاں پر یہ انٹرفیس اوپن ہو جائے گا. اب میں نے اس کے اندر وہ سلائڈ ایڈ کرنی ہے تو میں ایڈ کر دیتا ہوں ایک سلائڈ. تو میں یہاں پر سے میں فرض کرتا ہوں میں ان میں سے کوئی ایک بائی ڈیفالٹ جو ریوٹ مجھے دے رہا ہے میں اگر اس پہ اپلائی کر دوں اور یہ ایکسٹیریئر سائڈ پہ ہے میں اس کو انٹیریئر کر لیتا ہوں، فرض کرتا ہوں اور اپلائی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو ایک اسکرٹنگ شو ہوگی. اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے دونوں سائڈ میں چاہیے تو پھر اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ ایڈ کر دیں ایک اور سلائڈ. اس کو آپ وہی والی دے دیں جو آپ ادھر استعمال کر رہے ہیں اسکرٹنگ. اور یہ انٹیریئر ہے، ایکسٹیریئر اس نے خود لے لیا ہے. جب آپ اپلائی کریں گے تو دونوں سائڈ پہ آ جائے گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ دونوں نہیں چاہیے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم اپنی طرف سے ایک فیملی بناتے ہیں اس کے اندر. تو میں اس کو ہٹا دیتا ہوں، کینسل کر دیتا ہوں یہاں سے. اور میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر آپ جیسے ہی اوپر آئیں یہاں پر دیکھیں ٹاپ لیفٹ میں فائل لکھا ہوا ہے. فائل پہ جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس نیو ہے، نیو پہ آپ کلک کریں، فیملی پہ آ جائیں. فیملی پہ جیسے ہی آتے ہیں تو یہاں پر بہت سارے آپشنز آپ کے پاس اوپن ہو جائیں گے. آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. ہم چونکہ اس کو ایک سمپل سا ایک فیملی بنانا چاہ رہے ہیں اسکرٹنگ کی، ہم اس کو زیادہ کمپلیکس نہیں کرتے تو اس کے لیے آپ یہاں پر جیسے ہی نیچے تک اسکرول ڈاؤن کریں تو یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس پروفائل لکھا ہوگا، صرف پروفائل. اس پروفائل اب ہم پروفائل ریویل کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں پھر وہ یہ بات کہوں گا کہ ہم نے اس کو سمپل رکھنا ہے کہ فی الحال ہمیں سمپل سے ایک کام کرنا ہے. تو آپ نے پروفائل پہ کلک کر کے اس کو اوپن کر دینا ہے. جیسے ہی اوپن کرتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کے پاس ایک ریفرنس پلین لیول آپ کے پاس اوپن ہو جاتا ہے. تو اب میں اس کے اوپر کام کرنا چاہوں تو اس کے ایک اصول ہے کہ جتنا بھی آپ لائنز یہاں پر ڈرا کریں گے وہ ساری کی ساری جتنی بھی لائنز ہیں وہ اس پلین کے اندر آنی چاہیے اور ان کے ساتھ ٹچ ہونی چاہیے. اگر کہیں پر یہ اوپننگ رہ جائے گی یا کوئی لائن برابر نہیں ہوگی یا چلے برابر تو نہیں لیکن اگر کلوزنگ نہیں ہوگی یا اس ریفرنس پلیس سے اگر یہاں پر ہوگی تو آپ جب وال بنائیں گے تو آپ کی وال یہاں پر ہوگی اور جتنا آپ اس ریفرنس پلین سے آپ نے دور کام کیا ہوگا وہ ادھر بھی آپ کو اتنا ہی دور شو ہوگا. تو میں کیا کروں گا کہ مجھے اس پہ سمپل ایک کام چاہیے تو میں پہلے اس لائن پہ چلا جاتا ہوں. لائن پہ کلک کرنے کے بعد میں یہاں پر کلک کر کے اس کو فرض کرتا ہوں میں 5 انچ یا 6 انچ
स्कर्टिंग लेना चाह रहा हूँ, तो मैंने इधर एक लाइन लगा दी। लाइन आपकी यहाँ पर इंटरसेक्शन से स्टार्ट होगी। दूसरी लाइन, या मैं इसको एक दफ़ा फिर आपको डेमोस्ट्रेशन कर देता हूँ। यहाँ से लाइन को लें, यहाँ से इंटरसेक्शन से और 6 इंच तक मैं फर्स्ट कर दूँ यहाँ पर, जहाँ या आप इसको लिख के भी दे सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। 6 इंच मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दिया। ओके अब मैं दोबारा यहाँ से लाइन लेता हूँ, तो अब मैं कहता हूँ कि फर्स्ट करते हैं, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक कर्व सी शेप बन जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पर से रेडियस आर्क स्टार्ट एंड इसको आपने ले लेना है। इसी लाइन का एंड आपने इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, जितना भी आप आगे लेना चाहते हैं या जिस तरीके से भी आप इसको डिज़ाइन देना चाहते हैं। मैं इसको सिर्फ 2 इंच तक रख के इसको यहाँ पर एक कर्व शेप देना चाह रहा हूँ। 2 इंच के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा लाइन ले लेता हूँ इस तरीके से, और अब मैं यहाँ पर लाइन को स्ट्रेट में लाना चाह रहा हूँ। स्ट्रेट में लाने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से एक लाइन ले लेता हूँ और वही कर्व शेप, मैं जस्ट एक फॉर एग्जांपल के लिए मैं ये कर रहा हूँ। यहाँ से मैं यहाँ तक ला के और इसको मैंने थोड़ा सा एक इस तरह कर्व शेप दे दिया, थोड़ा बाला जितना भी मुझे चाहिए होगा। अब यहाँ पर ये जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग होना ज़रूरी है। अगर ओके इसके अलावा अगर आप लोड इनटू प्रोजेक्ट करेंगे तो ये हो तो जाएगा, लेकिन ये वहाँ पर आपको शो नहीं होगा। फिर यहाँ से आप क्लिक करें और इन दोनों लाइंस को इस तरीके से क्लोज कर दें। तो ये आपका एक वो बन गया है, एक किस्म का सेक्शन बन गया है, एक आपकी जो स्कर्टिंग है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मैं इसको सेव करूँगा। सबसे पहले आपने इसको सेव करना है, फिर हम इसको लोड इनटू प्रोजेक्ट करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा कि सबसे पहले यहाँ फाइल में आ जाएं। एक तो शॉर्टकट है कि कंट्रोल एस कर दें तो ये ओपन हो जाएगा, और एक तरीका यहाँ पर यह है कि आप फाइल पे आ जाएं। फाइल जी पे आने के बाद सेव एज और फैमिली सेव्स द करंट फैमिली, इस पे क्लिक कर दें इस तरीके से। अब मैं इसको डेस्कटॉप पे लेकर जाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया है और मैंने इसको नाम दे देना है फैमिली वन, और मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही सेव हो जाएगा, अब आपने क्या करना है, इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक आप कर सकते हैं। मैं लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया। अब मैं उसको इंटरनल वॉल्स में, यहाँ पर जो वॉल्स है उस पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो मैं अब दोबारा वॉल्स आर्किटेक्चर पे आ जाऊँगा। आने के बाद यहाँ पर जो मैंने एक वॉल क्रिएट की थी, अगर वो यहाँ पर ऐड नहीं हुई, तो फिर हम क्या करेंगे, इसी वॉल के एडिट टाइप में चले जाएं। अब मैं फिर इसको डुप्लिकेट कर दूं क्योंकि वो सेव नहीं हुई थी। तो मैं स्कर्टिंग वॉल के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। एडिट टाइप में आ जाऊँगा। उसके बाद अब चूँकि ये मैंने ओपन छोड़ा था यहाँ पर, तो मैं इसको स्वीप पे चला जाता हूँ। अब मैं अगर स्वीप पे ऐड करूं और यहाँ पर प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, तो जिस नाम से आपने सेव किया होगा वो यहाँ पर आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पर वॉल स्कर्टिंग फैमिली के नाम से सेव किया था। अगर इन केस नहीं आपने, तो ये आपने डेस्कटॉप पे इसको सेव किया है, जी जी बिल्कुल, तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो गया या हाँ जी, आपने आपने लिंक दिया हुआ था पहले नहीं। से? तो जो आप फैमिली क्रिएट करते हैं, तो फैमिली तो है ही रेविट के अंदर ही, उसकी फैमिली आप क्रिएट कर रहे हैं ना। तो जब आप वो करेंगे तो जाहिर बात है इसने खुद ही उसको डिटेक्ट करना है। नहीं लेकिन ये टेम्पलेट टेम्पलेट जो आपने बनाया है वो तो डेस्कटॉप पे है ना? जी, तो वो तो मैंने सेव किया ना। अब आप सेव नहीं करेंगे तो वो इसमें ये आपको जो शो नहीं वॉल होगा। स्कर्टिंग, हेलो। ओके ओके, जी जी, अच्छा, अच्छा, इन केस अगर फ़र्ज़ करते हैं कि अब तो ये यहाँ पर आ गया ना, मैं अगर आप करते हैं और यहाँ पर आपके पास शो नहीं होता, तो फिर आपने क्या करना है, सिंपल आप यहाँ लोड प्रोफाइल पे चले जाएं। ठीक है, तो जहाँ पर आपने सेव किया होगा जी उस फोल्डर में चले जाएं, जैसे यहाँ पर मैंने किया। आप इसको क्लिक कर दें, ओपन जैसे ही करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। दोबारा आप यहाँ पर चेक करेंगे आपके पास आ जाएगा। ये दो तरीके हैं, ठीक है। अच्छा, अब ओके अब मैंने क्या करना है ओके, कि यहाँ पर स्कर्टिंग ऐड करनी है, तो मैंने जो डिज़ाइन बनाया होगा वो इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। अगर मैं अप्लाई करूँ तो ये देखें आ गया यहाँ पर। तो मुझे एक्सटीरियर इंटीरियर, यानी ये जो वाल मैं इंटरनली ऐड करूँगा, ये वाली जो वाल है, तो मैं इंटरनली जब ऐड करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि इसके दोनों साइड पे स्कर्टिंग आ जाए। तो फिर उसके लिए मैंने क्या करना है, मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, और इसने एक्सटीरियर लिया, इसको मैं इंटीरियर दे देता हूँ, और इसको भी मैं वही वाली फैमिली जो मैंने क्रिएट की थी। अच्छा, अब हम ओके इसको नहीं करेंगे, सबसे पहले हमने इसको मटेरियल देना है यहाँ पर। तो
تو مٹیریل پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہاں مٹیریل پہ جیسے ہی جاؤں تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس یہ اوپن ہو جائے گا. تو میں فرض کرتا ہوں اس کو میں ٹائل لکھ لیتا ہوں, یا کو جوڑ لکھ دیتا ہوں کچھ 13. ہاں, یہ کچھ ٹائلز ہمارے پاس یہاں نیچے بھی آ گئی ہیں. تو میں یہاں سے اگر کلک کر کے اس کو لے لوں, یا اگر یہاں سے آپ کو کچھ اچھی نہیں ملتی تو میں یہاں سے نیچے اس کو کلک کر کے یہاں پر آپ آ جائیں, تو اس میں آپ کو ادھر اگر نہیں ملیں گی تو یہاں پر آپ کو مل جائے گی. یہ دیکھیں آپ یہاں پر بھی ہیں, اور یہاں سائڈ پہ دیکھیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا اوکے. اوپن کریں یہاں پر دیکھیں تو یہ دیکھیں مختلف چیزیں آپ کے پاس بہت ساری اس میں آپ کے پاس یہ آ جائیں گی. جیسے یہ ہے پورسلین ٹائل سے ملتا جلتا کچھ ہمارے پاس یہ آ جائے گا. اگر میں اس کو لے لوں یہاں پر تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آ جائے گا آپ کے پاس اس طریقے سے. ٹھیک ہے, اچھا میں اوکے کر دوں یہاں پر اس کو, اور اب یہاں پر اس کو میں کیسے لاؤں گا؟ آپ نے سمپل اس سب کو سلیکٹ کر دینا ہے, کنٹرول سی سے اس کو کاپی کر لینا ہے, اور یہاں پر نیچے لا کے کنٹرول وی سے اس کو پیسٹ کر دینا ہے. اچھا, اب یہ جو باقی کی چیزیں ہیں اس کا میں اگر آپ کو بتاتا چلوں تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کو فرض کی اپلائی کر دی, دونوں سائڈ پہ آ گئی. پرپینڈیکولر اورینٹیشن ہمیشہ اپنی پرپینڈیکولر ٹو فیس رکھنی, کیونکہ یہ جو الگ آپشنز یہ دے رہا ہے یہ ہم یوز نہیں کرتے. یہ ابھی پیرل ٹو گراؤنڈ ہے, یہ اس کا چینج ہو جائے گا. ہمیں اسی طریقے سے آپ نے بھی دیکھا اور آپ کا اپنا بھی ایکسپیرینس ہوگا کہ جس طریقے سے ہم اسکرٹنگ ایڈ کرتے ہیں اسکرٹنگ کا طریقہ یہی ہی ہوتا ہے, ہم اس کو چینج نہیں رکھتے. تو ایک یہ ہو گیا سائڈ, آپ کے پاس 2-3 چیزیں ہوں گی جن کو آپ نے چینج کرنا ہے. ایک پروفائل میں جو آپ نے ایڈ کی ہوگی اپنی پروفائل جو آپ نے بنایا ہوگا, دوسری جو چیز ہوگی وہ ہوگا سائڈس, کہ آپ کی جو سائڈس ہے وہ انٹیریئر ایکسٹیریئر سیٹ ہونی چاہیے. سیٹ بیک ہو گیا, کٹ وال, کٹیبل, یہ فلپ, ان سب کے ساتھ ان سب میں سے جو چیکڈ ہوں گے وہ صرف کٹ وال ہوگا, جس کے اوپر یہ آ کے اس کے ساتھ ایک صحیح طریقے سے ایک بونڈ بنائے گا یہاں پر. اور جو آپ کے پاس جو فارم ہے یہاں پر, یہ فارم ٹاپ پہ اوکے. نہیں کرنا, آپ نے بیس پہ رکھنا ہے. یہ یہاں پر بیس پہ اگر آپ ٹاپ پہ کلک کریں گے تو سیدھا اوپر چلا جائے گا. اور ڈسٹینس آپ نے 0 اس لیے رکھنا ہوگا کیونکہ جب آپ وال بنائیں گے تو ہم نے اس کو اس سے الگ نہیں کرنا, ہم نے اس کے ساتھ اس کو جوڑ کے رکھنا ہوگا. تو اس طریقے سے آپ نے یہ ساری ویلیوز کا خیال رکھنا ہے. بائی ڈیفالٹ جس طریقے سے ہوگا آپ نے اسی طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, اب اگر میں اس کو اوکے کر دوں یہاں پر, دوبارہ اوکے کر دوں پھر سے اوکے, تو اب یہ ہماری وال اسکرٹنگ کی یہ دیکھیں یہاں پر ایڈ ہو چکی ہے. تو میں صرف یہاں پر ایک وال فرض کرتا ہوں یہاں سے ایڈ کرتا ہوں. تو اچھا, وال جب آپ ایڈ کرتے ہیں تو وال میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہے فنش فیس, ایکسٹیریئر, انٹیریئر اور وال سینٹر لائن, یہ 3 چیزیں ہم یوز کرتے ہیں. تو اب میں انٹیریئر میں کام کر رہا ہوں, میں انٹیریئر لوں گا وال یہاں سے. تو یہ دیکھیں اب میں یہاں پر وال بنا رہا ہوں, اور اسپیس لگا کے یہاں پر یہاں تک میں اس کو وال کو لا کر اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. تو جیسے آپ 3D میں آ جائیں تو یہ دیکھیں آپ کی جو اسکرٹنگ ہے اس طریقے سے آ جائے گی. یہ دیکھیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کی جو والز ہوں گی اسی طریقے سے جی. آپ نے والز اس میں ایڈ کرنی ہے. میں 2-3 والز اور کر لیتا ہوں. آپ اسی وال کو کلک کر دیں اور سی ایس کنٹرول کریٹ سملر پہ کلک کر دیں. ایک اور وال میں یہاں پر ایڈ کر دیتا ہوں. تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آ گئی. ایک اور میں یہاں پر اس طریقے سے ایڈ کر دیتا ہوں. یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کے پاس کچھ مطلب ہے کہ آپ کی جو وال ہے جو انٹرنل سائڈ پہ ہے وہ اس طریقے سے آپ کے پاس آ جائے گی. اچھا, کچھ جگہ پہ اسکرٹنگ جو ہے صرف پینٹ کی ہوتی ہے, مطلب مطلب آپ ذرا تھوڑا ایکسپلین کریں. ہیلو, جی جی. مطلب جس طرح ہمارا پروجیکٹ ہے اس میں اپاکسی پینٹ ہے, تو اس کی جو اسکرٹنگ ہے انہوں نے کی ہوئی, مطلب وہ پینٹ انہوں نے نیچے 10 سینٹی کا اپاکسی پینٹ کیا ہوا ہے, اوپر دوسرا پینٹ کیا ہوا ہے, یعنی یہاں نارمل پر پینٹ. اس ایریے میں آپ کہہ رہے ہیں نا. ہیلو. جی جی, اور ادھر پینٹ کیا ہوا ہے, مطلب ادھر. آپ پینٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کو الگ سے ہیلو. مٹیریل بنانا پڑے گا. پینٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کا, گوگل سے بھی آپ ٹیکسچرز اٹھا سکتے ہیں, مطلب ہے کہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. میں یہاں پر یہ ابھی کلک کروں, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پر مینیج میں جیسے آ جائے تو یہ دیکھیں مٹیریل. ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں. فرض کرتے ہیں کہ میں جسٹ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ یہ والی وال ہے,
इस वॉल के ऊपर मैं कहता हूँ कि मैं एक अच्छा पेंट लगाना चाह रहा हूँ, या जी मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर फ्रंट साइड में सिर्फ इस वॉल पे मैं कहता हूँ कि टाइल आ जाए। तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले एक अच्छी वेबसाइट, आपको हम्म पता भी होगा वेबसाइट, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइल टेक्सचर, फर्ज करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ, एक ये तरीका है। ये देखिए अब ये टाइल टेक्सचर्स आ गए ना। और अगर आप यहाँ पर आ जाएं, जी पिंटरेस्ट पे आ जाएं, पिंटरेस्ट, पिंटरेस्ट पे जैसे ही आ जाएं यहाँ पर आ जाएं, इसको ओपन कर दें। अब इन दोनों में से हम मैं डाउनलोड कर, अब फर्ज करते हैं ये वाली एक 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 वो है, टेक्सचर है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ। तो अब मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा है, कन्वीनियंट है, मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेव पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर सेव हो जाएगा इस तरीके से। ये तो मेरी आईडी में होगा, डाउनलोड करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो फिर ये देखें डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर दें, डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, एक ये डाउनलोड हो गई। एक मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मैं कोई सी भी रैंडमली एक इसमें से मैं वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, ये वाली। यहाँ से मैं कोई टाइल ले लेता हूँ, ये इसमें से ये वाली ठीक रहेगी। इसको मैं सिर्फ एक डाउनलोड पे क्लिक कर लेता, अगर नहीं होता तो फिर इसका एक और तरीका है, और वो ये है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके सेव इमेज एज यहाँ पर आएगा। अगर नहीं आता यहाँ पर तो फिर इसको छोड़ दें। फिर ये चंद एक वेबसाइट्स हैं जिनसे हमें इस तरीके से चीज़ें नहीं मिलती। फिर ये जैसे कि अब ये वाली है, डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, सेव इमेजेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि वो बंद है। कुछ अच्छी क्वालिटी की चीज़ देख लेते हैं जिसका ज़रा पिक्चर क्वालिटी थोड़ा साफ़ हो। एक हो रही है यहाँ पर डाउनलोड। अच्छा, फ़िलहाल जो हमने डाउनलोड किया मैं इसी को इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं अगर आ जाऊँ तो मैं मटेरियल पे क्लिक कर दूँगा। मटेरियल पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, या नीचे आ जाएँ तो ये देखिए वही सेम वही तरीका है, प्रोसीजर है कि वो जो प्लास्टर हमने बनाया था। आप इसको यहाँ से क्लिक कर दें, क्रिएट न्यू मटेरियल जी कर दें। इस पे राइट क्लिक करके इसको रीनेम करके आप इसको दे दें, मैं फर्ज करता हूँ टाइल टेक्सचर के नाम से। नाम आपने याद रखना होगा कि फिर हम इस पर अप्लाई करें टाइल टेक्सचर। देखते हैं कि जो हमने सेव किया है वो पिक्चर यहाँ पर हमें शो होती है कि नहीं। डाउनलोड्स में शायद हो, डाउनलोड्स में देख लेते हैं। डेस्कटॉप पे मैं एक दफ़ा वो पिक्चर चेक कर लूँ। सेव एज पे क्लिक करके इसको मैं डेस्कटॉप पे ही रख लेता हूँ टाइप के नाम से। ये अब देखते हैं डेस्कटॉप पे टाइल्स के नाम से। इसमें सेव नहीं हुआ तो फिर कोई और पिक्चर देख लेते हैं। एक ये भी डाउनलोड हुई है, इसको देख लेते हैं। सिर्फ यहाँ पर एक पिक्चर है वो, अगर हाँ ये आ गई, ये इसको आप ओपन कर दें यहाँ पर। अब जैसे कि मैंने इसको ऐड कर दिया है तो ये देखें, इसका थोड़ा सा टेक्सचर देखने इस तरीके से ये आ जाएगा। तो अब अगर मैं इसको ओके कर दूँ यहाँ पर, और अब हम इस पे अप्लाई कैसे करेंगे, आप यहाँ मॉडिफाई पे आ जाएं, मॉडिफाई के बाद यहाँ पेंट पे आ जाएं, ठीक है। और जो नाम आपने जिस नाम से इसको बनाया था उसी नाम से आपने इसको सर्च करना है। अब मैंने इसको टाइल टेक्सचर के नाम से बनाया था, ये वाला देख लेते हैं इसको। ये देखिए जो हमने सेव किया था, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो सेम एज इट इज़ ये जो आपका जो आप जो अभी स्कर्टिंग का बता रहे थे, तो उसके लिए भी आप इसकी इसी स्केलिंग तरीके भी से चेंज हो सकती है।
ये देखिए, अब मैं अगर फर्ज का तो इसके ऊपर लगाना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपकी जो जो क्वेश्चन है वो इस हद तक शायद वो हो जाए, क्लियर हो जाए। तो ये जब ये आप स्टार्टिंग का कह रहे थे, ये फिर आपको अलग से फैमिली जनरेट करनी पड़ेगी इसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ होगा। अगर रिमूव करना चाहते हैं इस पेंट को, तो फिर आपने क्या करना है कि आप इधर आ जाए रिमूव पेंट पे, जिस एरिया पे आपने लगाया होगा उस एरिए से हटा के थोड़ा चेंज कर दें। अगर चेंज करना चाहते हैं, जैसे इधर कुछ था उधर कुछ था, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर दिए। तो अभी मैंने अपनी कस्टमाइज एक फ़ैमिली बनाई है, आप अगर अपनी एक फ़ैमिली बनाएंगे तो फिर उसमें भी इस तरीके से आपने उसको देना होगा ये सब। तो अच्छा, अब यहाँ पर मैंने इसको ये कर दिया, मैं चंद एक वॉल्स और भी क्रिएट कर देता हूँ इसी तरीके से, फिर हम इस पे वो कर लेते हैं अपना फ्लोरिंग ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक हो गई यहाँ पर। अब अपनी जो आपकी जो 2D ड्राइंग होगी उसमें आपको ये शो होगा, या ये जितनी भी आपने स्कर्टिंग वगैरह ऐड की होगी। अच्छा, ये इस तरीके से जब आपकी वाल आ जाए, तो इसको बराबर करने के लिए आपने यहाँ पर ALS की शॉर्टकट कमांड है, अलाइन नाम है इसका, इसको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। आप इस पर क्लिक कर दें। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली वाल इसके साथ अलाइन हो जाए, तो आप इस पर पहले क्लिक करेंगे, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपकी वाल ऐड हो जाएगी। TR दबा दें, ट्रिम एंड एक्सटेंड कमांड, आप इनके दरमियान एक बॉन्ड नहीं बन रहा, तो सिंपल इस पे क्लिक करते हैं, इस वाल पे क्लिक करते हैं इस तरीके से। अब मैं फ़र्ज करता हूँ TR को ऐड करके इस पर क्लिक करते, ये देखें इस तरीके से ऐड कर दिया, तो ये देखिए इस तरीके से इसका बॉन्ड बन गया। दोबारा WL मैंने पिक किया है जहाँ जहाँ पर वाल ऐड करनी है, ये देखें आप इस तरीके से। अब ये किचन के कुछ इन साइड में, किचन की इन साइड में स्कर्टिंग आ रही है, बाहर नहीं आ रही, मतलब हाफ वॉल पे आ रही है। एक मिनट में चेक करता हूँ, मैं इसको देखता हूँ। अच्छा, ये कौन से वाले एरिया की बात कर रहे हैं? इस एरिया की, इस एरिया की बात कर रहे ग्रेस हैं, किचन जो है। ये वाला हाँ ना। जी, देखिए तो ना ये अब ये। देखें मेरी बात सुने, अब ये जी। वाली जो वाल्स थी ना, ये वाली मैंने अभी आपको पहले नहीं, ये ये जो एक्सप्लेन किया था कि लेफ्ट ये साइड। कौन से इस साइड की बात कर रहे हैं ना। हेलो, नहीं नहीं, ये ग्रेस किचन में देखे ना, जी जी। ये वाली आवाज वाल आ है। रही है जी आपको? जी, आ रही आ रही आ रही है। ये हाँ, इन साइड पे, जो इन साइड पे वॉल है उसमें स्कर्टिंग, हाँ मतलब छोटी सी, छोटे एरिया में आई हुई है। देखिए मेरी बात सुने, इसको फुल वॉल में नहीं आई। मैं यही कह रहा हूँ आपको कि ये वाली जो वाल है ये हमने कस्टमाइज अलग बनाई है। ये जो वाल है ये अलग है, ये वाल अलग है, क्योंकि हमने इनको डुप्लीकेट किया हुआ है। अगर आप सिर्फ इन वाल्स पे करना चाहते हैं अप्लाई, तो इनके लिए आपको अलग से वाल को जनरेट करना है, यानी जी जनरेट से मुराद कि आपने इसी वाल को, सिर्फ इस स्पेसिफिक वाल को आपने क्या करना है कि आपने इसको डुप्लीकेट करके फिर उसी तरीके से जाके, और ये वाली जो स्कर्टिंग होगी, अब जैसे मैं इधर ही चला जाता हूँ, स्पेस को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, तो मैं अब की बार इस पर लिखता हूँ सिर्फ वाल 9 इंच, और स्कर्टिंग का नाम मैं इस पर दे देता हूँ। तो ये जब हो जाएगा आप एडिट पे चले जाए, आप देखें ये वाली जो कॉमन ब्रिक वाल है इस पर तो हमने नहीं लगाया, ये तो जो आउटर वाल थी तो वही वाली मैंने यूज़ की हुई है। जी ठीक है ना। अब अगर आप इस पे ऐड करना चाहते हैं, इधर आ जाएँ, इस पे क्लिक कर दें। अब मैं फ़र्ज़ जी। का तो इसका एक्सटीरियर इंटीरियर पे ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर आप इस पे आ जाएँ, इस पे आप इसको इसको भी दे दें इसका टेक्सचर जो हमने अभी रिसेंटली अभी इस्तेमाल किया है। मैं इधर लिख देता हूँ पुर्सलीन, पुर्सलीन यहाँ पर। ये देखिए, अब ये है या ये वाली है, मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से, और ये देखिए अब ये आ गई है यहाँ पर। तो अब मैं अगर इसको अप्लाई करूँ, इस तरीके से आ गया, तो ये देखें आप, मैं आपको 3D में चेक करा देता हूँ। ये देखें,
ये वाली जो डिटेलिंग है ना, ये डिटेलिंग फिर आपको अगर आपकी इसमें ज़रूरत होगी मैच तो इसको चेंज करेंगे फिर आप इस तरीके से। अच्छा, इसमें मैच प्रॉपर्टीज नहीं होता जिस तरह ऑटोकैड में होता है, जिस तरह हम इसको मैच प्रॉपर्टीज कर दें तो वो सेम सेम आ जाए। दरअसल ये ऑटो कैड से बहुत मुख्तलिफ है। आपको बहुत सारी चीज़ें जो ऑटो कैड में मिलती हैं वो इसमें नहीं है। इसका काम बहुत मुख्तलिफ है यहाँ पर। हम्म। अच्छा, अब यहाँ पर हम चूँकि इस पे फ्लोरिंग ऐड करना चाह रहे थे। फ्लोरिंग ऐड करने का जो तरीका है वो ये है कि अब मैंने इस वॉल को यहाँ पर मैं ज़रा इसको ज्वाइन कर दूँ। मैं ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, पहले हम जो जो फ्लोर है हम उसको ये वाला एरिया है, इस एरिया को छोड़ के हम पहले वो जो फ्लोर है इस एरिया में क्रिएट करते हैं। फ्लोर क्रिएट करने का तरीका क्या है कि आर्किटेक्चर में आ जाएं। यहाँ पर देखें तो हमारे पास है फ्लोर। इसके साथ यहाँ एरो पे क्लिक कर दें, फ्लोर आर्किटेक्चर पे आ जाएं, जी। ये ऑन हो जाएगा। तो आपने इसको डायरेक्ट नहीं यूज़ करना, आपने एडिट टाइप पे पहले जाना है इसको, और आपने सबसे पहले इसको डुप्लीकेट करके, मैं इसको नाम देता हूँ, फर्स्ट करता हूँ 6 इंच फ्लोर कर देता हूँ। जस्ट मैं इसको एक नाम दे रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ही डुप्लीकेट हो जाएगा आप एडिट टाइप पे आ जाएं। एडिट टाइप के बाद आपने इसको इसी तरीके रखना है। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 1 इंच इसके ऊपर एक फिनिशिंग आ जाए। तो मैं इसको 5 इंच कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, और इंसर्ट कर दूंगा एक और स्लाइड जिस तरह मैंने वॉल्स में की थी। इसको मैं अप कर देता हूँ। इसको मैं चेंज करके यहाँ पर फिनिश 1 का वो दे देता हूँ। तो ये जैसे आ जाएगा, तो अब इसको 5 इंच किया है तो इसको मैं 1 इंच ऊपर वो दे देता हूँ फिनिशिंग। तो जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो ये देखें एक लाइन आपके लिए यहाँ पर अराइज हो गई है फ्लोर पे। ये देखें, ये 1 इंच आपके पास फिनिशिंग हो जाएगी। जैसे ये आ जाएगा उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने फ्लोर को एक वो देना है ओ, जो, तो मैं ये नीचे वाला जो एरिया है इस पर मैं कंक्रीटिंग इस पे ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इस पे सबसे पहले मैं यहाँ पर कंक्रीट सर्च कर लेता हूँ। ये देखें अब कंक्रीट मेरे पास आ गई। मैं फर्स्ट कर तो इसको ले लेता हूँ। तो ये जो वो इस तरीके से आपके पास यहाँ आ जाए, यूज़ रेंडर अपीयर्स पे क्लिक करके इसको ओके कर देते, इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। अच्छा, फिनिशिंग में जो है उसको मैं थोड़ी फिनिशिंग अच्छी सी देना चाहता हूँ। तो मैं जो मैंने टाइल इस्तेमाल की थी उसके लिए स्कर्टिंग के लिए वही पोर्सेलिन टाइल मैं ले लेता हूँ यहाँ से भी, जो वही वाली। इसको मैं ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ग्राफिक्स पे आ जाए, इसको ओके कर दें, ये इसके ऊपर आ जाएगी। अगर ना आए तो फिर आप यहाँ पर दोबारा क्लिक कर दें, इसको क्लिक कर दें तो अच्छा ये वाला जो जो आपके पास ये जो ड्राफ्टिंग की जो ये चीज़ें आ जाती हैं, चलिए इसको इधर ही छोड़ देते हैं। मैं पहले फ्लोर ऐड कर दूँ फिर इस पर भी आपको समझाता हूँ। अच्छा, ये जैसे ऐड हो जाएगा सारा ओ, आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक तो ये तरीका है कि मैनुअली आप यहाँ ऊपर से लाइंस ले लें, ये जिस पे मैंने कर्सर रखा हुआ है। इसको अगर क्लिक करते हैं यहाँ से, तो मैं फर्ज करता हूँ इस एरिया से मैं बनाता हूँ इस तरीके से। तो एक ये तरीका है। दूसरा पिक लाइन का भी बताता हूँ जिससे आपका टाइम सेव होगा। एक ये हो गया, ये फर्ज करते हैं। अब ये वाला जो ये लाइन पे नहीं आ रहा, तो आपने यहाँ पर ए एल अलाइन को यूज़ करना है। इस पे क्लिक करके इसको लाइन पे ले आना है इस तरीके से। अच्छा, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ओ, यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि मैं इसी लाइन को इसको आगे यहाँ पर ले आया हूँ। अच्छा, इधर मैं क्लिक करके और इस तरीके से यहाँ आ गया और इसको यहाँ आके और इस तरीके से मैंने आपका कर दिया। अच्छा, एक एक तो ये तरीका है ये लाइंस पे लगाने का। दूसरा तरीका है पिक लाइन, जिससे आपका टाइम सेव हो सकता है। आप इस पे क्लिक कर दें, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। जैसे मैंने इसको यहाँ पर कर दिया, अब अगर इस लाइन को मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये अंदर की जाने जा रही है। अगर मैं इसको यहाँ पर ओके करूँगा तो ये मुझे क्या बताएगा कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इनको ज्वाइन करो। तो फिर इसके लिए इस किस्म से काम करने का फिर क्या फ़ायदा होगा कि आप पिरामिड एक्सटेंड को साथ ही साथ यूज़ करते जाएंगे। इस तरीके से इनको साथ ही साथ ज्वाइन भी करते जाएंगे, और पिक लाइन से आप इस तरीके से एक एक को पिक करते जाएंगे। ये हो गया। आप साथ ही साथ में इसको इधर साउथ। अच्छा, एक ये हो गया। फिर इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से ऐड कर दिया। ये थोड़ा टाइम सेविंग है।
इस तरीके से आपका जो काम है वो काफ़ी आपका टाइम इस तरीके से सेव हो सकता है। ये हो गया है सर, मुझे यहाँ पर यहाँ तक चाहिए होगा फ्लोर। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं अच्छा अब यहाँ पर मैं मैनुअली लाइन लूँगा और ये वाली लाइन जो है इसको मैंने यहाँ तक ले आना है। अब मैंने यहाँ से लाइन लेनी है, पहले इस हिस्से को मैंने इसके साथ मिला देना है। तो ट्रिम एंड एक्सटेंड कौन किया, टी आर पिक कर दिया, तो इनको इस तरीके से मैंने एक शेप दे दी है, मिला दिया, इनको ज्वाइन कर दिया इन लाइन को। अब यहाँ पर आके इसको मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया। तो चूंकि मुझे तो यहाँ से इस हिस्से से चाहिए होगी, तो फिर उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी लाइन को मैं यहाँ से पिक करूँगा, यहाँ पर आके और इस हिस्से पर आके और इसको मैं ज्वाइन कर दूँगा, ये हो जाएगा। अच्छा अब हमें चेक किस तरीके से करना है, अब ये देखें। फ़र्ज़ करते हैं कि मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और मैं अब ओके करता हूँ इसको यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरीके से पहले जल्दी से ही ये आपको पहले एक एरर देगा ये वाला। अगर आपको फ़र्ज़ करते हैं आप इस तरीके से हैं काम पे, इधर किधर लगे हुए हैं और आपको नहीं शो हो रहा कि किधर काम मुझे एरर दे रहा है, तो आपने शो पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये आपको सीधा उसी जगह पे ले जाएगा। आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर देंगे, अब इन लाइंस को मैं साथ साथ में एक जगह पे वो करना चाह रहा हूँ, अलाइन करना चाह रहा हूँ। तो आप इस पे क्लिक कर दें और इस पे क्लिक करके और इसको इसके साथ अलाइन कर दें इस तरीके से, तो ये अलाइन हो जाएगा। अब इनके दरमियान बॉन्ड ट्रिम एंड एक्सटेंड से आप इस तरीके से इनकी जॉइनिंग कर दें। अच्छा चलिए अब ये हो गया, तो मैं करता हूँ कि इसको ओके। तो ये जब ओके हो जाएगा इस तरीके से, तो उसके बाद हमने क्या करना है, आप इधर 3D में चले जाएंगे। तो ये देखिए आपके पास आपका जो फ्लोर है वो इस तरीके से आ जाएगा, जिस तरीके से जो मैं चाह रहा था कि मतलब जिस तरीके से आपको रिक्वायर्ड हो के आना चाहिए। अब मैं लेवल्स पे अगर आ जाऊं, तो ये देखिए आपने जो फ्लोर ऐड किया वो लेवल से नीचे जा रहा है। अब एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, और हमारी स्कर्टिंग यहाँ पर है। तो आप अगर इस पर क्लिक करते हैं और मैं इसको बराबर करना चाह रहा हूँ घर के साथ यहाँ पर, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके 6 इंच इसको हाइट ऑफसेट दे देता हूँ। जैसे 6 इंच हाइट ऑफसेट दें, ये ऊपर की जानिब जैसे ही आ जाएगा आपका फ्लोर जो है इस तरीके से ऐड हो जाएगा। अच्छा ऐड तो ये हो गया है, लेकिन यहाँ पर नीचे आपकी जो स्कर्टिंग है वो इससे नीचे रह गई है। उसका भी एक तरीका फिर मैं आपको बता दूँ, पहले हम फ्लोर को ऐड कर लें। जैसे हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं, तो फिर अच्छा एक ये जो मैं अभी आपको ड्राफ्टिंग का बताने लगा था, ये इस तरीके से आपको फ्लोर शो करेगा, क्योंकि रेविट में जब हम काम करते हैं तो ये बिल्कुल रियलिस्टिक है। अब यहाँ पर देखें तो आपको नीचे कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो फिर इस किस्म की कंडीशन में फ्लोर पे क्लिक कर दें, या फ्लोर पे क्लिक नहीं भी करते तो फिर आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके इसको वायर फ्रेम कर दें। वायर फ्रेम जैसे ही करते हैं तो इस तरीके से आपको शो हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि अब मैं इसको हिडन लाइन में ही रखूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको क्लिक करके जैसे ही सेलेक्ट हो जाएगा एडिट टाइप पे मैं आ जाऊँगा। एडिट टाइप पे आने के बाद यहाँ एडिट में आ जाएँ, यहाँ देखें तो ये कंक्रीट है, कंक्रीट पे क्लिक कर दें। तो ये जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये ड्राफ्टिंग के ये जो ये है, तो आप इसको नन कर दें, यहाँ पर इसको भी नन कर दें और इसको भी डन कर दें, ओके कर दें, इसको भी ओके। तो ये आपका हट जाएगा। अगर इन केस ये फिर भी नहीं हटता, तो फिर बस आप इसको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दें ना, सॉरी इसको सिंपली जब आप इस पे हैं तो आप यहाँ से इसको क्लिक करके और वायर फ्रेम पे ही कर दें। तो ये इस तरीके से आपको आपका जो काम है वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा, और एज इट इज़ आप आगे इसको काम करते जाएंगे। अच्छा ये जब हो जाएगा, उसके बाद हमने क्या करना है कि इस हिस्से में हम यहाँ पर देखें तो एक स्टेप सा बन रहा है, यानी ये से उठा हुआ है। तो आप फ्लोर पे चले जाएं दोबारा, या फ्लोर पे नहीं भी जाते तो यहाँ पर चूँकि हमने फ्लोर ऐड किया था, मैं उसी फ्लोर को ले लेता हूँ, यहाँ से एडिट टाइप पे चला जाता हूँ, या इस फ्लोर को आपने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर देखिए सी एस क्रिएट सिमिलर, आप क्रिएट सिमिलर पे क्लिक कर दें, मिलता जुलता है इससे। जैसे ये ऑन हो जाएगा, एडिट टाइप पे आ जाएं। एडिट टाइप के बाद मैं अभी इसका नाम चेंज करके 6 इंच मैं इसको नाम दे देता हूँ फ्लोर 2 के नाम से, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। और यहाँ पर आकर मैं इसकी थोड़ी सी थिकनेस को ज़्यादा कर दूँगा, तो मैं इसको 1 फीट और इस तरीके से। तो ये देखिए आपकी 1 इंच
जो नीचे से इसकी थिकनेस ज़्यादा हो गई, लेकिन वो 1 इंच जो आपकी वो है फिनिशिंग है वो वैसे ही आएगी। ये भी आप देख लेंगे यहाँ पर जब मैं इस पर अप्लाई करूँगा। अच्छा, अब मैं यहाँ से लाइन लूँगा और इसी हिस्से से जिधर से मैंने पहला फ्लोर डाला था एक लाइन यहाँ से मैंने ले ली, यहाँ से और सीधा यहाँ तक आकर इस हिस्से तक, या 1 मिनट, ये लाइन यहाँ पर इस तरीके से, और एक मिनट, अच्छा यहाँ से मैंने इसको ले लिया यहाँ पर, और मैं सीधा यहाँ तक आ जाता हूँ इस एरिया तक। जैसे यहाँ पर आप आ जाएँ, इस लाइन पे आ जाएँ, इस लाइन को इसके साथ सेलेक्ट करके यहाँ तक सीधा आगे यहाँ तक आ जाएँ। ठीक है, जैसे आप आ जाएंगे वॉल टू वॉल, आउटर आउटर से आपने तमाम तर जब भी फ्लोर बनाएंगे आउटर साइड से आप लें, इनर साइड से भी ले सकते हैं, लेकिन वो फिर बाहर के साइड पे आपको ज़्यादा तरीके से शो नहीं होगा, फिर उसमें आपको एडेड बाउंड्री करनी पड़ेगी। वो मैं फिर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने वॉल क्रिएट नहीं की, तो मैं इस लाइन को ही ले लेता हूँ, फिर वॉल मैं बाद में भी क्रिएट कर लूँगा। यहाँ से इसको मैंने ले लिया इस तरीके से, और साथ ही साथ इस तरीके से मैं आकर और इसको मैं अब ज्वाइन कर देना चाहता हूँ यहाँ पर, तो टी आर दबा दें ट्रिम एंड एक्सटेंड से, और इसको इस तरह ज्वाइन कर दें। हो गया, ये जब ज्वाइन हो जाएगा आप इसको ओके कर दें। अब ओके जब हो जाएगा तो अब ये देखें 3D में आप आ जाएं तो ये देखें ये भी वॉल से नीचे जा रहा है, और ये वाला चूँकि हमें यहाँ पर एक स्टेप चाहिए जो उठा हुआ होता है, तो जो आप यहाँ पर हाइट ऑफसेट पे क्लिक कर दें, इसको 1 फीट और चेंज दे दें। जैसे ही ओके करते हैं अप्लाई करते हैं इसको, तो ये देखिए अब आपके पास इस तरीके से एक स्टेप बन जाएगा जो कि इससे उठा हुआ होगा। ये जब यहाँ पर हो जाएगा तो अब ये वाला एरिया मेरे पास रह गया है। तो अगर आप यहाँ पर भी चेक करना चाहें तो यहाँ पर भी चेक करें, तो ये देखें मैं इसको अगर वायर फ्रेम कर दूँ या हेडर लाइन्स कह दें, तो ये देखें आपका जो फ्लोर है, या टेक्सचर में कर देता हूँ, तो ये देखें आपका जो फ्लोर है, ये देखें यहाँ पर लेवल्स को चेक कर लें। आपका फोर्थ लेवल यानी 0 0 से स्टार्ट हुआ है, और सीधा फिनिशिंग पे जो मैंने ये वाला लेवल दिया था, ये वाला लेवल 1 फीट और 6 इंच पे, उस पर सीधा जाके उसके साथ टच कर रहा है। तो कहीं पर अगर लेवल उठा हुआ होगा तो आपने फिर फ्लोर की जो थिकनेस है उसको ज़्यादा करना होगा, ताकि इन ऑर्डर टू आप उसको अचीव कर सकें, ऊपर की जो फिनिशिंग है उसके साथ ये एग्जैक्ट आ सके। अच्छा, ये जब इस तरीके से ऐड हो जाएगा और लेवल्स पे भी बराबर आ जाएगा, फिर आपने क्या करना है कि ये वाला एरिया फ़र्ज़ करते हैं मेरे पास अब रह गया है, तो मैंने इस पे अब अगर ऐड करना चाहूँ, तरीक़ाकार वही होगा, आप इसको ले लें अगर इसको लेना चाहते हैं तो, और यहाँ पर सी एच कर दें, क्रिएट सिमिलर। सी एच करने के बाद आप एडिट टाइप पे आ जाएँ, और एडिट टाइप के बाद अब मैं इसको डुप्लीकेट करके इसको फ्लोर 3 के नाम से इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। एडिट टाइप पे आ जाएँ और सिंपल इसकी जो थिकनेस है 2 से इसको 1 से 2 कर दें। आप ओके कर देंगे यहाँ पर। जैसे ही ओके कर दें, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक लाइन ले लूँगा और यहाँ पर ला के इसको इस तरीके से मैं लाइन, ये यहाँ पर इस तरीके से मैं ले आया, और ज्वाइन करने के लिए टी आर कर दें, और अगर ये इस तरीके से हो जाए तो फिर भी ना हुआ तो फिर आपने क्या करना है कि इस वाली लाइन को थोड़ा पीछे कर लेना है, फिर टी आर कर दें, और इस तरीके से आपका एक जॉइंट बन जाएगा। अगर मैं इसको अभी यहाँ पर ओके कर दूँ और यहाँ पर आ जाऊँ तो इसकी थिकनेस बनिस्बत उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब मैंने अगर इसको उठाना ही है यहाँ पर, और मैंने इसको इसके ऊपर वो जो एक स्टेप हमें शो हो रहा था, अगर मैं उस पर इसको करना चाहूँ तो हाइट ऑफसेट पे आप क्लिक करके इसको 1 फीट और 6 इंच इसको ऑफसेट दे दें। हाइट ऑफसेट जैसे ही देंगे तो इस तरीके से आपका फ्लोर ऐड हो जाएगा।
अच्छा, अब जब ये हो गया है तो फिर आपने क्या करना है। अब मैंने लास्ट टाइम अभी आपको बताया था कि हमारी जो स्कर्टिंग है वो तो इंटरनल ही रह गई है, यानी नीचे रह गई है। तो मैंने क्या करना है कि मैं अगर इस एरिए से सबको सेलेक्ट कर लूँ, इस तरीके से वॉल्स को सेलेक्ट करने के बाद फ़िल्टर पे चले जाएं। फ़िल्टर पे जाने के बाद आप फ्लोर को अनचेक कर दें और वॉल्स को ओके कर दें। अब यहाँ का जो लेवल है इस एरिए का वो मुख्तलिफ है, तो शिफ्ट पकड़ लें और इन वॉल्स को अनचेक कर दें, क्योंकि मैं सिर्फ ये वाली वॉल्स करना चाह रहा हूँ। अगर आप इनको भी करना चाहेंगे तो फिर इस एरिए की जो वॉल्स होंगी उनको अलग से फिर आपने उठाना है। अब मैं इसको, या ये वाली है, इस पे तो मैंने अप्लाई नहीं किया। बाकी इस एरिया में मेरे पास जो जो वाल आप लेना चाह रहे हैं चेंज ऊपर, अब मैं इन सब को जब मैंने कर दिया तो बेस ऑफसेट यहाँ पर है, मैंने बेस ऑफसेट पे क्लिक करके यहाँ पर 6 इंच इसको मैं ऑफसेट देना, क्योंकि ये वाला जो फ्लोर है मेरा ये 6 इंच मैंने उठाया हुआ था। जैसे क्लिक करते तो ये देखिए आपकी जो स्कर्टिंग है वो ऊपर आ जाएगी, जहाँ जहाँ पर आपने नहीं तो स्कर्टिंग इसको लगाई। फ्लोर को हम नीचे नहीं लेके जा सकते नहीं नहीं माइनस में? नहीं नहीं नहीं, फ्लोर को हम नीचे इसलिए नहीं लेकर जा सकते क्योंकि आपके पास इस एरिया में आपके पास ज़ीरो से आप यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं, और फ्लोर को ज़ीरो माइनस पे आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास यहाँ नीचे कोई इस तरीके से कोई आप कोई फ्लोर बना रहे हैं या कुछ और इस तरीके से है। अदरवाइज़ जो फ्लोर्स हैं वो बहुत कम तरीके से हम इसको इस वाले तरीके को यूज़ करते हैं। यानी आपने ये अच्छा, मुझे ग्राउंड दो फ्लोर मिनट है। इसमें 2 मिनट दे सकते हैं आप मुझे? जी प्लीज 2 मिनट दे, ये 2 मिनट दे दें बस एक। प्रिंट आउट अरे need by part are complete by mesh by part. जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। जी जी। जी जी। स्टार्ट करें? तो ये मैं बस इसको मैं अभी यहाँ पर एंड कर दूँ ये, क्योंकि हमारी मीटिंग का जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पर। ये मैं अगर यहाँ से देख लूँ अगर कितना टाइम रहता, मैं ज़रा इसको चेक कर लूँ। बस जी ये जी। थोड़ा सही रहता है। जी आप पूछें ना, आप पूछें, आप क्या पूछ रहे थे, पूछें। मैं मैं कह रहा था ये फ्लोरिंग आप वॉल को अबव कर रहे हैं तो फ्लोरिंग को डाउन नहीं कर सकते? फ्लोरिंग को मतलब डाउन। ये लेवल जो आपने बनाया हुआ है 6 इंच का, हम्म। इसको माइनस माइनस में नहीं लेके जा सकते? माइनस में आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने अब यहाँ पर जो काम शुरू किया, अगर आप देखें तो आपको इतना तो अंदाज़ा होगा कि जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो फ्लोर होता है वो ज़ीरो से हम स्टार्ट करते हैं, जितना भी मतलब वाल्स वगैरह काम होता है। तो जो आपके पास जो करंट कंडीशन है वो हमने यही ली है कि हम ज़ीरो से काम कर रहे हैं, तो मैंने फ्लोर उस हिसाब से डाला है। आप जब काम करेंगे अगर आपके पास इससे नीचे जाना है तो फिर आप उस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ये कोई इतना वो नहीं है, वो जस्ट आपको एक तरीका बताने के लिए कि ये जब जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर
یہ چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے پوری یہ ڈیٹیلنگ جس طریقے سے اب ہم کام میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہا ہوں. تو یہ ابھی آپ بیم میں آپ کہہ دیں کہ یہ 350 ایل او ڈی پہ آپ کام کر رہے ہیں لیول آف ڈیولپمنٹ پہ کہ جتنی آپ یہ ڈیٹیلنگ کر رہے ہیں یہ ساری 350 ایل او ڈی پہ آپ کوآرڈینیشن سے پورا کام کر رہے ہیں. تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو والز بتا دی کہ اس کو آپ 6 انچ اٹھا دیں اور اس طریقے سے تو یہ ہم بہت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جب آپ فلور کو اٹھا لیں اور اوپر کی جانب کر دیں. آپ یہ دیکھیں جتنا بھی فلور ہم نے ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں آپ کے لحاظ سے یہ تمام تر فلور یہاں پر جتنا بھی ہم نے ایڈ کی سارا کا سارا والز کے ساتھ ایک صحیح طریقے سے کوآرڈینیشن کے ساتھ ایک صحیح طریقے سے آیا ہوا ہے یہاں پر. مطلب کہیں پر آپ کو کوئی ایک ایسی چیز نہیں دیکھے گی کہ جو مطلب ہے کہ صحیح طریقے سے اس کی کوآرڈینیشن نہ ہوئی ہو. اسکرٹنگ پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور یہ والی ریکارڈنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. ہیلو اوکے. ہیلو. جی جی ٹھیک ہے. اچھا چلیں بس میں اس کو اینڈ کرتا ہوں کیونکہ یہ ابھی کچھ ہیلو اور بات آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے آ گئی آ گئی. میں اس کو وہ کرتا ہوں کہ یہ پھر بعد میں ابھی یہ بیچ میں یہ کٹ جائے گی کال تو بس اس کو میں یہاں پر اینڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کوئی کوشچن ہو تو آپ جب کام اوکے کریں گے تو مجھ سے اوکے پوچھ تھینک سکتے یو. ہیں آپ. ٹھیک ہے مجھے میسج کر دیا کریں جب آپ پریکٹس کر رہے ہو کوئی کوشچن پوچھنا ہو تو پھر میں آپ کی ہیلپ کر جی دوں گا انشاءاللہ. جی تو کل کل فرائیڈے ہے تو ادھر ہمارا آف ہوگا پھر جی تو آپ تو لینا سیٹرڈے کو کلاس لیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے چلے اوکے ہو گیا. ٹھیک سیٹرڈے کو اوکے ٹھیک اوکے ہے نا. ٹھیک اوکے ٹھیک. اوکے تھینک یو. السلام علیکم. اوکے اللہ حافظ.